Hello and welcome to the Chit Chat Show, which is organized by Dream Chasers Media Limited and supported by Swad Hindustan का. आज जो मेरे साथ सेलिब्रिटी गेस्ट है, शी डजंट नीड एन इंट्रोडक्शन एट ऑल. शी हैज़ बीन इन द टीवी इंडस्ट्री फॉर ऑलमोस्ट लाइक 21 ईयर्स एंड आई एम श्योर आप लोगों ने उनको कहीं ना कहीं ज़रूर देखा होगा, चाहे वो कमर्शियल हो गया, फिल्म्स हो गया या फिर टीवी सीरियल. So let me just not waste any more time and introduce you to her. She is Jyoti Gabaji. So I'm just adding her and let's talk to her. I think she's not, yeah, she's there. We are just waiting for her to be there online. I'm hoping that she will connect with us soon. Hello everyone who has been just waving to me. Hello everyone. I'm still waiting for Jyoti Gabaji to join with us. I think some issue. She has not joined yet. I'm still waiting. I hope she joins with us soon. Hello everyone. Hello everyone. Thanks for joining. And she's still not there. She's still not there. Okay. Let me just. Hello everyone. Till the time I'm waiting for her to join, let me say hello to all of you. And yeah, she's there. Hello. Hi. And I was just waiting for you. Like I was wondering, आप कहाँ गायब हो गई हैं? Like everybody was saying hello and all that. आशा पहले मैं लॉग इन हुई and I couldn't see you. So everybody is Yeah, asking me कि मैम क्या हुआ किधर हो? yeah. I saw you like live and then I had to call you and tell you that नहीं मैं live होंगी और मेरे को आपको add करना है. Anyway, everything is sorted and you are there and I'm so happy to see you here. Yes, yes. Yeah. Now can you hear me? Yeah. Very much. Yeah. Now before we start, I want to say a very big hi and a warm welcome, for my Insta family, my Insta viewers, my Insta friends. क्योंकि वो मुझे बहुत समझते रहते हैं. आशा आज आपकी वजह से आई एम योर लाइव फॉर माय इंस्टा फैमिली. Thank you so much, man. It was actually very nice to see you. Like Corona के time पे and during this lockdown, I never thought like this is kind of my first chat show and I never thought कि ऐसे online भी बात करके हम chat show कर सकते because till now we have met like generally किसी से भी होता है तो we meet on shoot or कोई भी उसमें करेक्ट shoot या studio में करेक्ट मिलते हैं. करेक्ट करेक्ट. This is also a way ये out. नया करेक्ट ये नया ट्रेंड है फॉर Yeah. ऑल ऑफ अस. Yeah, for all of us. Like before you joined, मैं सबको introduce कर रही थी. Like we have seen you, all over the place in TV industry. Like commercial हो गया, serials हो गया, या फिर films हो गया. So let's start with your journey. You have been there. I was just reading about you. You have been there for so long in the sense that आपने अगर कोई भी I think 1 out of 5 commercials में तो आप होते ही हो. Like you're there. So how your journey started? यस, बिल्कुल सही बोल रहे हो आपकी. 1 out of 5 commercials I have always been there, and Yeah. I thank God for this beautiful journey that Yes. I have been traveling in. It's Right. still continuing. 22 साल Yeah. हो गए मुझे इंडस्ट्री में. एंड ऐसा कोई भी प्रोडक्ट नहीं है जिसके लिए मैंने मॉडल नहीं किया है Yeah. आज की तारीख में. लेट इट बी I शैम्पूज, have, डिटर्जेंट. yeah, exactly, and I've seen that लोग अगर आप किसी भी एक्टर से पूछोगे तो उनका ड्रीम होता है अमिताभ बच्चन के साथ काम करना. एंड आपने उनके साथ भी किया हुआ है, आपने माधुरी दीक्षित के साथ काम किया हुआ है, आपने जूही चावला के साथ काम किया है, रवीना टंडन, एंड द लिस्ट इज एंडलेस. So how was करेक्ट. working with Mr. Bachchan? विथ मिस्टर बच्चन इतना ज्यादा इंटरेक्शन नहीं था,
but yes, he is a nice and a humble person. But मेरे ज़्यादा interactions रहे हैं माधुरी दीक्षित के साथ, with Yeah. रवीना टंडन, and Yeah. I must say कि gem of persons, both of them. Yeah. You have shared like Quaker Rats में आप उनके साथ थी, माधुरी दीक्षित के साथ, you share the same screen space, और आपने काफी, I'm sure आपने उनके साथ उसके बाद काफी बातें भी करी होंगी, like how was it? That is what I said कि मेरा 1-to-1 interaction हुआ है इन दो actresses के साथ में. Yeah. So it's been a very beautiful experience. Like when I shot with Madhuri, ऐसा लगा ही नहीं कि first time I'm working with her, या वो एक celebrity का होता है ना किसी के mind Right. में, तो Yeah. वो बिल्कुल भी नहीं था माधुरी में. It's like she started talking to me about her children. She started asking me about my children, which is like a very rare thing, कि आप Yeah. first meeting में आप Right. किसी के साथ इतना घुल मिल करके इतनी ओपनली बात करें. Exactly. So it was nice. It was really very nice. And like we are talking about like lockdown and also, what do you want to say? How was this 2 months period? कैसा था? Like बहुत सबके लिए एक different experience रहा है ये lockdown, because nobody expected this कि ऐसा Correct. कुछ होगा life में. तो how was how did you spend your lockdown period? देखो, जब ये लॉकडाउन पहले शुरू हुआ तो इतना ज्यादा कुछ समझ नहीं आ रहा था. लोगों ने माइंड में डर बहुत डाल दिया था. आई रिमेम्बर इनिशियली जब लॉकडाउन हुआ तो लोग नीचे नहीं उतर रहे थे. जो उतर रहे थे वो डर के जा रहे थे. लाइक सर्टेन डेज जब मैं भी नीचे गई तो मैंने देखा कि पूरा अंधेरा छाया हुआ है. तो ऐसा लग रहा था कि अगर कोई चोर वोर बाजू से आ जाए, वो एनी सच थिंग. तो इतना कुछ ज्यादा समझ में नहीं आ रहा था कि चलो ठीक है, अब कहा है एक हफ्ता नहीं निकलना है. बट दिस केप्ट ऑन एक्सटेंडिंग एंड एक्सटेंडिंग एंड एक्सटेंडिंग. इवेंचुअली आई वुड सी कि ये व्हाट्सएप मैसेजेस हो या आप न्यूज़पेपर खोल लो, या ये जो ई न्यूज़पेपर्स का स्टाइल जो चल गया, बिकॉज बहुत सारी चीजें जो है चेंजेस हमें दिखाई दिए इस लॉकडाउन पीरियड के दौरान. न्यूज चैनल्स तो ऑफकोर्स हमारे होते ही हैं, तो हर जगह बस एक ही न्यूज सुनने आ रहा है. और अगर लोग आपस में बात भी कर रहे हैं तो इट्स लाइक माय गॉड, पता नहीं क्या होगा, कोरोना के साइड इफेक्ट क्या होंगे. तो इट्स लाइक कि सी आई बिलीव लाइफ इज अ जर्नी. जो आया है उसे जाना तो है ही. ऐसा तो नहीं है कि हम सब यहीं पर रहने वाले हैं, लेकिन जितने भी दिन हम यहाँ रहें, द क्वालिटी ऑफ लाइफ हैज टू बी टॉप मोस्ट, which is very very important. डर के जीने का क्या मतलब है? We all know that we all have to go one day. So live each and every day, every moment. तो मैंने सोचा ये क्या डरना है. So it's like practically I like to spend time with myself, which I started doing. पहले नहीं मिलता था समय, because I'm a housewife, I'm a mother, plus I'm a professional, तो I have to manage all the three. लेकिन जब शूटिंग आती है तो प्रायोरिटी तो हमें शूटिंग को ही देनी पड़ती है. बट देन आई थॉट कि ये जो लॉकडाउन पीरियड है, दिस इज द बेस्ट पीरियड फॉर मी टू कनेक्ट विथ माई चिल्ड्रन, माई सेल्फ, which is very very important, and that is what I have been doing. I would just say that in a way lockdown has actually taught us a lot, basically to be with ourselves, to give ourselves some Correct. time, और अपनी फैमिली के साथ हम जुड़ रहे हैं. So I think in a way like we should take it as a positive thing. And and apart from that, चलिए अब हम बात करते हैं आपकी जर्नी की. like we all know that आपने इतने सारे कमर्शियल किया. How it all started? कहाँ से is it like आपको हमेशा एक्टर ही बनना था, या आपको इसी में आना था, या कुछ बाय चांस हुआ है? नहीं, मुझे हमेशा एक्टर बनना था. ये तो कभी मेरे सोच में भी नहीं आया कि मैं इस फील्ड में, इस इंडस्ट्री में आऊंगी. मुझे एयर होस्टेस बनना था. ओके क्योंकि इट वाज लाइक आई वांट टू ट्रैवल टू प्लेसेस एंड आई वांट टू फ्लाई डाउन टू वेरियस कंट्रीज एंड एक्सप्लोर. सो दैट वाज इनटू माय माइंड राइट फ्रॉम माय स्कूल डेज कि मुझे ये सब करना है. लेकिन बीइंग फ्रॉम अ वेरी कंजर्वेटिव फैमिली, माय फादर वाज लाइक कि बिल्कुल भी नहीं, कि अच्छे घर की लड़कियां ये प्रोफेशन नहीं चुनती है. एंड तो आई वाज लाइक वेरी डिसअपॉइंटेड. आजकल के बच्चे जो है अपनी जिद मनवा लेते हैं. उस टाइम पर हम नहीं कर सकते थे. जो कह दिया था हमें वही करना है. We don't have a choice. पत्थर
की लकीर होती थी पहले के टाइम पे। Exactly. So, from within it was like, yeah, काश ये कुछ समझ जाए मैं जो करना चाहती हूँ, बट देयर वाज अ टोटल नो फ्रॉम माय हाउस कि नहीं, आप नहीं कर सकते तो नहीं कर सकते. देयर इज नो सेकंड थॉट और नो सेकंड टाइम आस्किंग अबाउट दिस. राइट तो आई सेड कि चलो ठीक है, फाइन, नाउ आई हैव टू लुक फॉर समथिंग एल्स, जहाँ मुझे भी खुशी मिले करते हुए. राइट So the second option was, since I was very intelligent, you know, ओके so my parents said कि तुम्हें चाहिए तो you can start taking tuitions, call for children at home. I used to do this right from the time when I was in standard 7. I used to teach my cousins, neighbors. So I was independent from the time when I was studying in standard 7. Oh wow. Okay. So आप like was there any other profession like आप मतलब जैसे टीचिंग आप ट्यूशंस लेती थी तो like आप उससे आपने उसको आगे बढ़ाया like something? Please repeat again. I didn't said get you. like आप ट्यूशंस लेती थी, आप ट्यूशंस लेती थी, उससे आपने आपने उसको प्रोफेशन बनाया like you were a teacher or something, आपने क्या किया उसके बाद? I cannot hear you. You will have to be a little more louder. I said आप ट्यूशंस लेती थी right? You were taking हाँ. tuitions. उसके बाद आपने क्या किया? Okay, fine. Yeah. Now, after I was taking tuitions, I Yeah. did my BSc B.Ed degree, which is a qualification required if you have to join school as a teacher. Teacher. And fortunately, I joined as a secondary school teacher, that is standard 8th, 9th, and 10th. Since I am a maths graduate, I was given Oh. the subject mathematics, and I was Okay. handling these three classes, 8th, 9th, and 10th. So my journey as a school teacher started. So from a school teacher to an actress, like Yes, ये तो yes, बहुत yes, yes. I'll tell you, I'll tell you. how you got your first commercial? कैसे आपको like पहला आपने काम क्या किया था? What was the first thing that you started? Okay. This is like, I have twin boys. Now they're big boys. Okay. From the time, say, probably they must have been 6 months of age. Okay. It was, I always had the feel, कि मुझे मेरे बच्चों को टीवी पर देखना है. I don't know how it came. It never came for myself, कि मुझे टीवी में खुद को अपने आप को देखना है or I want to do something. No, it never came. But it's like, see, अगर आपके लिए कोई चीज बनी है तो प्रकृति व्यवस्था कर ही देती है आप तक पहुंचाने की. सो इट वाज लाइक कि मैंने जैसे सोचा कि यार मुझे बच्चों को देखना है टीवी में. उस समय इतना एक्सेस तो था नहीं मीडिया को और ना ही नॉलेज थी कि हाउ डू आई अप्रोच, हाउ डू आई गो अबाउट. So I started like, scanning the newspapers and searching ki how can I get in touch with people who make advertisements, could it be print or could it be a TV commercial? How do I get in touch for my children? Yeah. And काफ़ी मुझे रिसर्च करना पड़ा एंड बहुत सारे लोगों ने मुझे कहा रजिस्ट्रेशन फीस देनी है. एक आध दो जगह मैंने भर भी दिए बट दे वर नॉट जेन्युइन. इट्स लाइक लोगों ने पैसे ले लिए लेकिन कुछ काम नहीं मिला बच्चों के लिए. बट एज आई टोल्ड यू कि इफ यू आर डेस्टिन्ड फॉर समथिंग, कहीं ना कहीं वो चीज आप तक आ ही जाती है. द फोटोग्राफर हु शॉट माय चिल्ड्रन, माय ट्विन बॉयज फोटोज, he eventually happened to call me up after 2 months of the shoot and he told me, he said कि मैम मुझे आपके बच्चों की फोटोग्राफ फेमिना मैगजीन में यूज करनी है, सो कैन आई गेट द परमिशन. अब मुझे इतनी नॉलेज नहीं थी, सो आई सेड कि अच्छा ठीक है आप यूज कर लीजिए. देन ही आस्क्ड मी, डिड यू गेट एनी वर्क फॉर द चिल्ड्रन? आई सेड नहीं, जिसने मुझे रजिस्टर करवाया था and the person who put me on to you and made me pay your charges, her charges, but I have not got any work for the children. There have been no calls. So he said that's not a nice thing, and he shared a couple of numbers. And that is where I started approaching people. उस समय हमारे पास हार्ड कॉपीज होती थी फोटोज की, तो हम हार्ड कॉपीज सर्कुलेट करते थे, पीछे हमारा नाम और नंबर लिखते थे एंड बच्चों की एज, because the kids were very small. So whenever I would get a call for the children, I would take them,
and people started telling me कि आप क्यों नहीं try Yeah. करती हैं. Yeah. So I was like कि I was like surprised कि ये मुझसे क्या पूछ रहे हैं. I never thought about it, for myself. So what And every what was time your first commercial? First commercial आपको कौन सा मिला ऐसे? my first commercial was Junior Holics. That was again Oh, मैं बच्चों को ले गई थी. They didn't okay, want a model. They wanted real mothers. okay, okay. So that is where my journey started as a model. This is a very interesting journey. Like I have heard like engineers बन जाते हैं, doctors बन जाते हैं. Now it is like the first time I'm hearing the teacher from a teacher to an actor, and that too like you have been there almost everywhere. So Correct. तो आपने जो जर्नी अपने बच्चों के लिए स्टार्ट करी थी, क्या उनके अंदर भी लाइक आप तो आई एम श्योर कि भाई उनको वो चांस मिला, या उनको वो जो लाइक आपके अंदर का जो एक चाह थी जो आपके अंदर की, वो पूरी हुई, या अभी भी लाइक दे आर स्टडिंग, व्हाट आर दे डूइंग राइट नाउ? देखो मैंने बच्चों को काफी फोर्स किया, प्रेशराइज भी किया जब वो छोटे थे. एंड इट्स लाइक व्हेन आई स्टार्टेड गेटिंग वर्क, आई या डिड अ कपल ऑफ एड्स विथ माय चिल्ड्रन. जैसे मैंने डॉय सोप का ऐड किया, गोदरेज लॉक का ऐड किया, मैंने बहुत सारे प्रिंट कमर्शियल्स भी किए अपने दोनों बच्चों के साथ में. लेकिन मैंने देखा कि वो दे वर नॉट सो इंटरेस्टेड एंड कीन इन डूइंग या modeling or advertising. So then I thought, ki it's really not nice to force someone if the interest is not there. And if work is coming my way, तो वो interest मैंने अपने पर पूरा किया. And when work so started for me, there's been no turning back. basically that destiny was for you and not for them right now. I mean अभी Exactly. तक That's what तो I said कि कोई चीज अगर आपके लिए बनी है तो प्रकृति yeah, व्यवस्था कर ही देती है आप तक पहुंचाने के लिए. And पहुंचा. I'm the biggest example. Yeah. So अभी जैसे आपने बोला that you have twin boys, Hmm. मतलब बच्चे obviously you're managing everything, your home, your work, your kids, तो it would be very difficult for you. तो मतलब आपके बच्चे कैसे हैं? Like are they naughty or they are like हाँ मम्मा हम संभाल लेंगे, आप चिंता मत करो, आप जाओ जो करना है करो, like that. They support you in everything? See, my twins are fraternal twins. They are not identical. Okay. And शक्ल तो अलग है ही है, लेकिन उनके बिहेवियर पैटर्न्स भी अलग हैं. एक अलग. जो है वो मतलब he is an extrovert. He will come and he'll pour out his heart to me. He will talk everything, like a friend. Yeah. Probably अगर if somebody is going out with his गर्लफ्रेंड, तो वो भी आकर के कुछ कुछ बातें शेयर कर लेगा. ऑब्वियसली अपनी गर्लफ्रेंड के बारे में नहीं करता है, Yeah. बट Yeah. Yeah. द अदर इज एन इंट्रोवर्ट. वो कुछ नहीं कहता, वो चुप चुप रहता है. Okay. बट नॉटी, हाँ, एक नॉटी है, वो मुझ पर गया बिकॉज आई हैड द सेम This ट्रेट्स. is like you are telling. So Avin, we have to know what are the all naughty things that you have done, as a kid. क्या किया आपने ऐसा? कुछ एक इंसिडेंट बताया that nobody knows अभी तक, किसी को भी पता नहीं है. ठीक है, मैं शेयर करती हूँ. अभी स्कूल में हमारे टाइम पे जब टीचर हमें क्वेश्चन पूछती थी, तो Yeah. वी यूज्ड टू रेज आवर हैंड, कि मिस Yeah. मिस मिस, तो मिस आपको टर्न देती थी कि हाँ चलो यू आंसर, वी स्टैंड अप, वी आंसर. Right. तो कई बार ऐसा होता था कि मुझे आंसर आता था और मैं इतने एंथुजियाज्म में, एक्साइटमेंट में मिस 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 करके हाथ ऊपर कर रही हूँ, और मिस मेरी तरफ देख ही नहीं रही है. Right. सो Right. आई एम Right. लाइक ओके ठीक है, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा तो हो सकता है मिस मेरी तरफ देखे. Right. Right. नाउ समवेयर डाउन द लाइन आई वाज लाइक कि मुझे आता है लेकिन मुझे ज्यादा टाइम चांस ही नहीं मिल रहा है आंसर करने के लिए. Right. So once what I did was कि the girl who was there in front of me in the front bench, मिस ने उसको बोला कि yes you answered, तो she answered. When she went to sit, तो मैंने उसका बेंच खींच दिया, तो वो नीचे गिर गई. But obvious I had to get punished and I got punished. So your teacher didn't ask like आपने ऐसा क्यों किया, and did you tell her that आप मुझसे पूछ ही नहीं रही थी, इसलिए मुझे नहीं करना नहीं, पड़ा? मैंने नहीं बोला, बट इट वाज लाइक एक मस्ती सूझी मुझे, Right. कि Right. मुझे मस्ती Why करना not है. me? मेरे को एंड क्यों नहीं पूछ रहे हैं? हाँ, एंड उससे पहले माय मॉम टेल्स मी व्हेन आई वाज देयर इन द प्रोबेबली आई थिंक प्री प्राइमरी सेक्शन आल्सो, तो माय मॉम वाज कॉल्ड टू द स्कूल. Okay. So
my mom asked कि क्या हुआ, so then they said कि we don't allow her, you know, to go to the washroom because the reason is whenever she takes permission to go, what she does is she takes bucket of water and she pours it out so it comes in all the classes. तो Okay. ये ऐसे मतलब छोटी छोटी मस्तियां करने में मुझे बहुत मजा आता था. बहुत अभी मजा आता and you know and I am sure that that's the reason आपने अपने दोनों बॉयज को बहुत अच्छे से हैंडल किया because you know them well, you know that you know कहाँ से ये मस्तियाँ आ रही है, कहाँ से ये नॉटीनेस आ रही है, करेक्ट, you know कि करेक्ट, कहीं ना करेक्ट, कहीं मेरा ही अंश है and you know वहीं से आ रही है and you know how to handle it. करेक्ट, करेक्ट. Anyway, अच्छा apart from this, like you know I would like to know like आपने अभी बहुत सारे आपके प्रोजेक्ट्स आए recently and you know I got to know that you have already shot for Coolie #1 with Varun Dhawan. So अभी आपने वो किया, तो आपके आने वाले प्रोजेक्ट्स के बारे में बताइए. Okay. Now, before lockdown, I shot for Coolie #1 with Varun Yeah. Dhawan, which was Yeah. going to release on 1st of May, that is Labor Day. लेकिन Okay. लॉकडाउन की वजह से, as we all know, कि theaters are not going to open up and all the movie releases have been kept on hold Yeah. currently. Then I also shot for Anubhav Sinha's feature film. The name is yet not decided. It could be Best Friends Forever, or I don't know. There's some alternate name also, which I think they had told me, but I cannot recollect it right now. Right. So these two were in the pipeline, and upcoming projects, apart from what I finished shooting before lockdown, are I was going to start for a web series with Dharma Entertainment, and we were going to travel to Delhi for that. लेकिन lockdown के, you know, though I think 3 दिन पहले they called up and they said कि, you know, because of the lockdown which is going to happen, so we will postpone and we will give you the new dates. So that one is in the pipeline, and the second is Kota Factory web series. वो काफी hit हुई थी. I Yeah. played mom of the boy. So they are coming out with season 2. So that is also in the pipeline once lockdown is over. So Probably I we mean shoot for already that. you have like lot of things you know जो आपकी पाइपलाइन में है और you know ये लॉकडाउन भी अच्छा गया है आपका and I'm sure अब इसके आने मैंने वाले लॉकडाउन में मैंने लॉकडाउन में मदर्स डे का एड शूट किया था फॉर एशियन पेंट्स. मदर्स डे वाज ऑन 10th of May, so 6th of May we shot for an ad from home. ओके, तो वो भी आपने मतलब लॉकडाउन को आपने फुली यूटिलाइज किया है, ऐसा नहीं है कि आप लॉकडाउन में दूसरे लोग जैसे बोर हुए हैं या फिर यू नो नहीं, यू बिल्कुल नहीं. आई हैव यूज्ड ईच एंड एवरी डे, ईच एंड एवरी hour, each and every minute, and I think we should all do that. या एंड यू नो क्योंकि व्हाट आई या जो दिन जाता है वो कभी वापस नहीं आता है. एग्जैक्टली. रिमेम्बर दैट. एंड यू नो हियरिंग योर स्टोरी यू नो यू आर एन इंस्पिरेशन टू ऑल द वुमेन जिनको ऐसा लगता है कि यू नो अब तो शादी हो गई है, अब तो बच्चा हो गया है, अब क्या लाइफ बची है. यू नो आई हैव बीन हियरिंग ऑल दिस लाइक यू नो कई लोग ऐसे सोचते हैं कि बहुत लोग सोचते हैं शादी के बाद उनके करियर का दी एंड होता है यू नो एंड ऑब्वियसली बच्चों के बाद तो दे फॉरगेट अबाउट एवरीथिंग यू नो उनकी लाइफ पर्सनल लाइफ क्या है, उनकी नीड्स क्या है, दे जस्ट गिव एवरीथिंग टू देयर किड्स. So what is the message that you want to really tell all those mothers and to all those you know जितने भी females हैं वहाँ मतलब out there you know who want to do something in life and you know they think कि यार अब कैसे होगा, हम कैसे करेंगे, you know you are a big inspiration to them. जस्ट एज यू सेड कि यू नो बच्चे हो गए, लॉट ऑफ लेडीज थिंक कि अब हम क्या करें. लेट मी शेयर विथ एवरीवन दैट मेरा करियर, मेरी प्रोफेशनल लाइफ मेरे बच्चों के बाद ही शुरू हुई है. एज आई टोल्ड यू कि मैं बच्चों को टीवी में देखना चाहती थी और खैर और आप खुद वो टीवी में आ इंटरेस्ट गई. एग्जैक्टली मैं खुद आ गई. वो जो शौक था मैंने अपने ऊपर पूरा किया और मैं आज भी पूरा कर रही हूँ. आई एंजॉय माई ईच एंड एवरी असाइनमेंट, आई एंजॉय माई ईच एंड एवरी डे. काम हो या ना हो, काम हो तो खुश, ना हो तो और भी खुश, क्योंकि दिस इज लाइफ एंड आई थिंक वी शुड लिव इट टू द फुलेस्ट. हमें ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि बच्चे हो गए तो अब मैं नहीं कर सकती, मैं नहीं कर पाऊंगी, या कि अब क्या करूं. नहीं, जिंदगी एक दौर है, आप उसे खुलकर जिए एंड लिव एवरी मोमेंट एंड एंजॉय. एंड यू नो व्हेन यू सेड एंजॉय तो मुझे आपसे ये पूछना है कि ऑफ ऑल द कमर्शियल्स दैट यू हैव डन टिल नाउ मतलब
which one is your favorite and you know आपके जो दिल से लगा हुआ है, जो something special to that commercial, ऐसा कोई commercial है आपका? Yes, I had देखो when I started modeling, you know, Yeah. तो जब मुझे ऑफर्स आते थे और मैं कहती थी मैं कैसे करूंगी, मुझे कुछ नहीं आता है, तो वहां पर लोग मुझे कहते थे कि यू हैव अ नाइस स्माइल, आपको कोलगेट की Yeah. एड मिलेगी। तो आई Yeah. वाज लाइक कि अच्छा ठीक है, कोलगेट की एड तो मुझे कभी नहीं मिली, लेकिन मैंने पेप्सोडेंट की एड की। so, उसमें I was about to say you have a very charming face actually, you know, हाँ, you have a very charming face जो I think हर जगह सूट हो जाता है, चाहे वो कोलगेट की एड के लिए हो गया, किसी और प्रोडक्ट के लिए हो गया, सब जगह सूट हो जाता है वो। तो पेप्सोडेंट में एक डिशुम डिशुम सीरीज के एड्स शुरू हुए थे Yeah, बहुत yeah. पहले। आई डोंट नो वेदर यू नो अबाउट इट और यू मस्ट हैव हर्ड अबाउट इट, आई हैव नो क्लू। तो सबसे पहला डिशुम डिशुम एड Okay. was done by me. So that Okay. is one ad which is very close to my heart, you know. Okay, because you always thought कि because of the smile factor, you know, and I think आपने जैसे माधुरी की बात करी, माधुरी की स्माइल भी माधुरी जी भी स्माइल के लिए जानी जाती हैं, and you know you also have a very beautiful smile, तो Yes, दोनों lot इससे of ज़्यादा people tell कनेक्ट। me. Lot Yeah, of people tell me. yeah, exactly. So apart from this, anything else like you know a message that you want to give before we sign off from this chat today? कोई भी ऐसी एक चीज जो आपको ऐसा लगता है कि भाई आपने इस लॉकडाउन से सीखी है एंड यू वांट टू टेल एवरीवन यू नो कि ये हमेशा याद रखें, और यू नो अगर मैं उसको कट शॉर्ट कर दूं, कोई भी एक एक सलाह सबको अगर आपको देनी है तो जस्ट वन इन वन सेंटेंस। Okay. See, this lockdown period, what I जो strategy जो मैंने अपने खुद के लिए अपनाई है, I would want all of you also at least एक बार आप try देकर तो देखिए। अगर फायदा नहीं हुआ तो नुकसान भी नहीं होगा। Just try and spend some time with yourself. जरूरी नहीं है कि सुबह का ही समय हो, जब आपके पास टाइम हो। Just sit down, think about, you know, a lot of things that have happened, मतलब सुबह से आपने क्या क्या किया, अब आगे आपको क्या करना है। just keep your mind calm, and once you are calm you see the energy level goes like this। और अगर आपने 5 चीजें प्लान की है कि मुझे 5 चीजें करनी है, ऑटोमेटिकली 8 चीजें आप कर जाएंगे, और वो एनर्जी कहाँ से आई है आप खुद ही मतलब अद्भुत रह जाएंगे कि अरे ये मैंने कर लिया कैसे हो है। गया, So राइट। just try and do that. It could be any time in the day. You know, it could be कि आप जब सोने जा रहे हो. It can be at that time also. Just keep your mind calm. शुरू में हमें efforts करनी पड़ती है, लेकिन ऐसा होता है कि once you start, it just gets into your system and you don't need to put any efforts. तो वो ट्राई करके देखिए, एंड वॉट एवर यू लाइक जस्ट एंजॉय लाइफ। यू नो, आपको मेडिटेशन पसंद है, आपको यू नो वर्कआउट पसंद है, आपको वॉक करना पसंद है, आपको जो करना है आप कीजिए, जिंदगी खुल के जिए। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ अस। इट्स आपने बिल्कुल सही कहा, जो करना है करो बट डोंट ट्रबल एनीबडी, जैसे सलमान खान बिग बॉस में बोलते हैं, डू व्हाटएवर यू वांट टू डू बट डोंट ट्रबल एनीबडी, सो इट्स लाइक करेक्ट। दैट। यू नो इट वाज ग्रेट चैटिंग विद यू, बहुत मजा आया आपके साथ बात करके, थैंक यू एंड सो यू नो मच। या एंड इट वाज लाइक अ वेरी इंटरेस्टिंग, जहाँ पे आपने बताई अपनी लाइफ के बारे में, अपनी बचपन के बारे में और अपने आने वाले प्रोजेक्ट्स के बारे में। So, viewers, all those who have not been able to be like you know watch this session live, they can watch us at our YouTube channel Dream Chasers Media Limited. आप वहाँ पे भी जाके इस एपिसोड को वहाँ देख सकते हैं। So, ज्योति जी, I'll say bye and you know till we meet next time. यस So, यस, and I what would say you? yes, I would like to thank you and all my Insta viewers, followers, my Insta fans for all the love that you have been showering on me. Please keep showering that love. Yeah, मुझे बहुत मोटिवेशन मिलती है। yeah, very true. Yeah. Please do that for her and for me, so that you know we keep coming up with good work. Yeah. Yes, Okay, Jyoti ji, okay, I'll take your leave. Bye lots bye. of love. Yeah, lots of Bye. love. Bye bye.